मनी कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव माइंड से. सो हाय मुझे पैसे कमाने, यू हैव टू हैव समथिंग. आई लव डूइंग दिस, पैसा विल फॉलो. क्या हम अपनी सैलरी से कभी रिच नहीं हो सकते? डू वी ऑलवेज हैव टू गेट इनटू बिजनेस? Exactly. 10,000 का. Now this person, like because of AI you can analyze 6 months के खर्चे. You can exactly know कि 6 months में मैंने किया क्या है. 6 months, 1 year, whatever you tell it, right? कि अब then you can tell him कि you have analyzed it. When you see that na, that check, that constantly somebody telling in your mind. We believe that we are saving, we are investing at right places, but again somehow we feel broke. I mean, by we I mean the people who are in their 20s or 30s still face the similar issue, that at the end of the month they would feel that there is a lack of money in their bank balance. So invest कहाँ करे पे मैं बाद में आती हूँ, इन्वेस्ट कहाँ नहीं करे पे मैं पहले जाती हूँ. Right. कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट मत कीजिए. प्लीज टू एवरीबडी आउट देयर. मेरे चाचा जी ने वहां पे लगाए, चलो हम भी यहाँ पे अपने पैसे लगा देते. मेरे जिम वाले इंस्ट्रक्टर ने ये वाला स्टॉक खरीदा, चलो हम भी ये खरीद लेते. We all always talk about money. हमारी सुबह से लेकर रात तक की कॉन्वर्जेशंस पैसा कमाना, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा कहाँ सेव करना, पैसा कहाँ खर्च करना के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है. बट समहाउ पैसा कमाने के बारे में सोचने और पैसा एक्चुअल में कमाने के बीच में दो गैप एग्जिस्ट करते हैं. वन इज द स्किल सेट गैप एंड द सेकेंड इज द माइंड सेट गैप. और इन दोनों गैप को फिल करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी मिस रमनीक घोत्रा से, हु इज द CGO ऑफ इन्वेशिया ग्रुप, अबाउट हाउ कैन वी एक्चुअली फिल दिस गैप. तो ये कॉन्वर्जेशन को एंड तक देखना, और इस कॉन्वर्जेशन से आपको समझ में आएगा कि कहाँ, कैसे, किस तरह हमें अपना माइंडसेट और स्किल सेट चेंज करने की जरूरत है टू एक्चुअली बिकम रिच. ऑल्सो हमने इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल जंप के बारे में बात करी है, विच कैन हेल्प यू ट्रैक एवरीथिंग, योर एक्सपेंसेस. इट विल नोटिफाई यू जब खर्चे ज्यादा हो रहे होंगे. इट विल हेल्प यू सेव, हेल्प यू इन्वेस्ट. 2-3 हजार जितना अमाउंट भी या 500 रुपए जितना अमाउंट भी, इट विल हेल्प यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, और कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको बताएगा. इस टूल के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो यू नीड टू वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड. Hi Ramneek, welcome to Kahaniya. How are you? Hi, thank you so much Anjali for having me. I am good, thank you very much. How are you doing today? Lovely. So, at Kahaniya, we talk about important topics, but through stories, through Kahaniya. So, it's more like in today's conversation, we'll talk about important stuff like investing, saving, what are the common mistakes that people, especially in their 20s or 30s, make. But again, we will talk through a lot of case study, a lot of experience you bring in, right? So if I start with my first question to you about, there is this thing that people misunderstand about money. Like they feel money is all about saving it or having some amount of bank balance at the end of the month. But then there is something called being rich or getting rich over time. So how do you see money as? How do I see money? So I was in India, then I was in Canada, then I came back to India. So globally, Indian people are very, very famous for saving money. Sometimes they say, oh, Indian people are cheap, but they're so smart with money. They always save money. But what Indian people are not good with is creating wealth. Right. उस बैंक में पड़े पैसे को हमने कहाँ पे लगाना है? Where do we have to put that money? Is something that I feel that we are not good at. We don't invest that money to create a generational wealth so that we can splurge also, and we can have a lifestyle, and we can create that wealth by giving momentum to our money. पैसे को काम पे नहीं लगाते, हम पैसे जोड़ते हैं. हम अपना चलो अब हम ये नहीं खरीदते हैं और हम लोग अपने पैसे जोड़ लेते हैं. पैसे जोड़ के उसको काम पे नहीं लगाते ताकि वो हमारे लिए काम करे और हमारे लिए वो वेल्थ
क्रिएट करे जो सो कॉल्ड कहते हैं रिच बनाती है हमको. तो ये राइट. मुझे लगता है. राइट. सो हमेशा ना ऐसा होता है कि वी बिलीव दैट वी आर सेविंग, वी आर इन्वेस्टिंग एट राइट प्लेसेस, बट अगेन समहाउ वी फील ब्रोक. I mean, by we, I mean the people who are in their 20s or 30s still face the similar issue that at the end of the month they would feel that there is Broke. a lack of money in their bank balance. So how do we, so you were talking about investing as well as saving, right? So how do we divide our money in that form? Like how much should we invest, how much should we spend, how much should we save that money for that matter? So basically अंजलि क्या है, वी अर्न मनी, ठीक है. अब मार्च है, 31 मार्च हो गया, अब सबको रेजेस मिल रहे. Right. आजकल की जनरेशन व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग अपना जैसे जैसे हमारे पैसे, अगर हमें सपोज से 10% चेंज हाइक मिला, या जॉब चेंज करके लेट्स से 30% हाइक मिलता है, हम वैसे ही अपना लाइफस्टाइल भी इंक्रीज कर लेते हैं. वी डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ दैट मनी टू इन्वेस्टमेंट कि ठीक है मेरा गुजारा, लेट्स से माय जॉब इज फॉर 25,000, ठीक है, मेरा गुजारा उस टाइम पे 25,000 में भी हो रहा था, और मैंने जॉब चेंज किया, मेरी जॉब 35,000 की हुई. सो वो 10,000 रादर देन स्प्लर्जिंग इट ऑन Amazon के और ऑर्डर्स, ब्लिंकिट के और ऑर्डर्स से, और ये अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि देख मैं कितना अच्छी शर्ट पहनी है, अभी मैंने 5,000 की शर्ट पहनी है बिकॉज मेरी 30,000 की सैलरी हो गई है या 35 की. उसकी जगह अगर हम वही पैसे अगेन काम पे लगाए, ठीक है, और इन्वेस्ट करें, वो दैट इज व्हेन यू विल नॉट फील ब्रोक. द सेकंड वे टू इज कि मेरे को बचपन में सिखाया गया था, सो कनाडा में यू हैव सेविंग्स अकाउंट एंड चेकिंग अकाउंट. सो और वहां पे बाई वीकली सैलरी मिलती है. तो वेरी अर्ली ऑन इन माई एज आई लर्न कि वन सैलरी आई पुट इन माई सेविंग्स अकाउंट एंड वन सैलरी आई पुट इन माई चेकिंग अकाउंट. चेकिंग अकाउंट वाली सैलरी आई यूज टू स्प्लर्ज, एंड जो सेविंग्स अकाउंट वाली सैलरी थी मैं उसके साथ कुछ नहीं करती थी. बट अगेन दैट टाइम आई वाज नाइव, आई वाज नेवर इवन यूज्ड टू इन्वेस्ट इट, आई जस्ट यूज्ड टू सेव इट. सो हर इंसान को 50% ऑफ देयर सैलरी अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करनी चाहिए. यू नो डे टू डे एक्सपेंसेस में रेंट्स है, खाना पीना, बिल्स, एवरीथिंग. अराउंड 30% शुड बी फॉर योर स्प्लर्जेस, राइट? एंड व्हेन आई एम सेइंग स्प्लर्जेस, जो भी तुमने पार्टी करनी है, एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं, एंड अ लिटिल बिट ऑफ दैट 30% शुड बी ऑन योरसेल्फ एज वेल. सिर्फ खुशी शुड नॉट बी कि मैंने अच्छे कपड़े पहने या मैंने पार्टी कर ली. दैट उसका सम पार्ट शुड बी टुवर्ड्स योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल. दैट कैन बी करियर ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ. उससे क्या होता है, तुम एज अ पर्सन बहुत ग्रो करते हो. एंड 20% ऑफ योर, सिर्फ 20% ऑफ योर फंड्स, 10% हमें सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड 10% हमें अलग से सेव करके उसे इन्वेस्ट करना चाहिए. बट वो हमारे को होना चाहिए फॉर आवर इमरजेंसी फंड. That is ideally how we should save and invest our money in that proportion, is what I feel. That's so true. And I think वो understanding develop करनी पड़ती है over time. It's not just that about those numbers, as you mentioned. Numbers are important, that इतना करके करना चाहिए, but एक understanding भी होनी चाहिए कि okay, अभी salary आ गई है तो ऐसे करके रखेंगे, and then only over time we'll be able to become rich. मतलब हमारे पास, हम सबके पास एक एक अकाउंट तो होता नहीं. हमारे पास वी ऑल हैव मल्टीपल अकाउंट्स. तो अपनी सैलरी को डे 1 पे डिवाइड कर दो. अगर यू नो समटाइम्स हैबिट बिल्ट है, तो सिंपल है, एक सैलरी निकाल के आधी सैलरी उसमें रख दो कि ये मेरे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, ये मेरी सैलरी उसके लिए है, फॉर सॉरी, ये मेरी सैलरी एक्सपेंसेस के लिए, ये मेरी सैलरी स्प्लर्ज के लिए, ठीक है. तुम्हारा स्प्लर्ज के लिए एक अकाउंट है. जब वो खत्म हो गया तो इसका मतलब अब मैं स्प्लर्ज इस महीने नहीं कर सकती. एंड थर्ड, अपनी जब महीना शुरू होता है ना, सो माइंड बड़ा क्रेजी होता है. हम माइंड कहता है कि मैं ना पहले अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लूंगा, पहले मैं खर्चे कर लूंगा, उसके बाद जब मंथ एंड में कुछ बचेगा ना, मैं पक्का उसको सेव करूंगा. आई थिंक इट शुड बी द ऑपोजिट. पहले जो आए हैं ना पैसे, उसको सेविंग में लगा दो. अब इसका मतलब वो सेविंग्स वाले पैसे को तुम हाथ तो लगा नहीं सकते, बिकॉज या तुमने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, या तुमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, या तुमने NFTs में लगा दिया, कहीं पे भी तुमने अपने पैसे ऑलरेडी लगा दिए. अब तुम्हारे पास वो पैसे हैं नहीं. सो साइकोलॉजिकली तुम्हें माइंड को पता है अब मेरे पास 35,000 का सिर्फ 30,000 बचता है. अब 30,000 में मैंने अपना महीना चलाना है.
सो वो माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है. सो राइट. सो डू यू थिंक इट इज साइकोलॉजिकल एज वेल? क्योंकि मतलब ऐसे बचपन से कुछ चीजें होती हैं मनी के बारे में जो हमारी फैमिली में ही हम देख रहे होते हैं, राइट? कि इतना पैसा बचाना है, इतना पैसा, या इसमें इतने की चीज आई है, उतने की चीज आई है. सो डू यू थिंक कि ये बचपन से जो हम सुन रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं आसपास, वो हमारी मनी की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है ओवर टाइम, और इज इट नॉट लाइक दैट? सो जब हम छोटे, लाइक आई हैव 2 किड्स. किड्स आर इन्फ्लुएंस्ड 2 ways. एक होता है तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, और दूसरा तुम्हारा आउटसाइड माहौल कैसा है. So one, when you are in your teens or tweens and 20s, 30s, early ages, तुम्हारा जो बाहर का इन्फ्लुएंस है वो तुम्हारे जो घर पे सिखाया जाता है उस पे हावी हो जाता है. राइट. सो चाहे तुम्हारे मम्मा, तुमने देखा है बचपन से कि तुम्हारे मम्मा पापा सेव करते हैं, पर तुम्हें कहा जाता है ओ जितनी चादर है उतने पैर फसाने चाहिए, ये सबको बोला जाता है कि अपने चादर के अंदर रखो ताकि यू ऑलवेज विल हैव दैट एक्स्ट्रा बफर मनी. बट ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज हमारे पास इंटरनेट का इतना एक्सपोजर है, इट्स नॉट जस्ट फ्रेंड्स, हमारा माहौल वैसा है. ऑल ऑफ अ सडन वेयरिंग, बाइंग कैपिटलिज्म हैज बिकम सो promoted so much कि हम लोगों को लगता है यार ये कूल थोड़ा है. अब मम्मा पापा कूल नहीं लगते. सो वो बैलेंस, आप हमारी वाली जनरेशन के लिए वो बैलेंस ढूंढना कि कहाँ वो हम अपना सेविंग्स वाला पार्ट जो हम है, ताकि हमें वो दिक्कत वाले फेज पे ना पहुंचे, और कूल वाला फैक्टर को कहाँ हम मर्ज कर सकते हैं ताकि वी कैन हैव आवर आइडियल लाइफस्टाइल. Right. So you also come from a humble background, right? So when was the time, or what was the time, if you remember, that your understanding about money started changing? So I belong to a Punjabi family, and ना जब हम छोटे होते थे ना, so every second person was going to New York, Canada चले गए, US चले गए, और ना वो गैस स्टेशन पे गैस डालते थे. ठीक है. सो वन ऑफ माय कजिन्स, बट उसने अपने पैसे सेव किए, उसने स्ट्रगल किया और उसने सेव किए अपने पैसे, और हम कहते थे कि सारा दिन काम करता रहता है, यू फेल्ट बैड फॉर हिम एज वेल. बट इवेंचुअली क्या हुआ, देन उसने अपने पैसे सेव करके, बाय द टाइम ही वाज 16 जब वो कनाडा US गया था, एंड बाय द टाइम ही वाज 22 23, उसने इधर से पैसे बोरो करके प्लस व्हाट ही हैड सेव्ड, उसने अपना पहला गैस स्टेशन बना लिया. पंजाबीज आर वेरी फेमस बाहर जाके गैस स्टेशन बनाने के लिए, गुज्जूज आर वेरी फेमस बाहर जाके होटल्स बनाने के लिए. तो उसने फर्स्ट गैस स्टेशन बना लिया. नाउ इवन दो ही वाज नॉट एजुकेटेड, बट ही invested in money and he saved his money. He after 5-10 years, जो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे थे कि यार तू तो अभी भी पेट्रोल पंप में काम करता है, हम लोग तो ये करते हैं, बट आफ्टर 5 years जो उसने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, जो अपनी उसने लाइफ में अचीव कर लिया, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग कि यार ऐसे भी लाइफ चेंज हो सकती है. राइट. यू कैन बी एट एनी लाइफ. तुमने पढ़ा है तो भी तुम यहाँ पे जा सकते हो. ग्रोथ का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तुमने एजुकेशन का छोटा लेवल किया है, बड़े के लिए पैसे नहीं थे, बट अल्टीमेटली वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग स्टेपिंग स्टोन फॉर योरसेल्फ विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं कूल लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ. आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक इज कि मैं कूल लग रहा हूँ क्या नहीं, कि लोग क्या कहेंगे. पहले किसी और टाइप से लगता था, अब किसी और टाइप से लगता है कि फ्रेंड्स क्या कहेंगे. सो अगर हम वो वाला फैक्टर छोड़ के वी पुट ऑन दोस 5-6 years फॉर आवरसेल्फ, आप नॉर्मल ऑडियंस से यहाँ पे होंगे. That's so true. I think that is very important fact you pointed out कि वो एक stipulated time तो निकालना ही पड़ेगा जिसमें वो cool वाली चीज या लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ करके saving पे investing पे ध्यान देना पड़ेगा, and that is how your money will start going as well. और आप मतलब there are a lot of also. So वो एक there was a show that used to come. It used to be America's Next Top Model. अभी उसकी फेयर बड़ी हाइप हुई थी because they were. but उसमें एक चीज दिखाई दी, self confidence. If I am confident and I know I look good, I can look good in a 200 रुपए की बैंड्रा वाली टी शर्ट एंड जीन्स एज वेल. पर अगर मुझे अपने आप को ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, मेरी जो बेसिक वजूद है, होंद जिसे कहते हैं, वो ही कॉन्फिडेंट नहीं है मुझे, बिकॉज मेरा कैलिबर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कैलिबर नहीं ग्रो किया. वो नहीं है, तो अगर मैं आज 50,000 की टी शर्ट भी पहनूंगी, मैं अंदर से वैसा ही फील करूंगी. सो व्हाट यू फील इनसाइड
जो तुम अपने मन में फील करते हो वही तो कपड़े भी हाईलाइट करते हैं, एंड इट इज जस्ट यू इन 200 रुपए वाली शर्ट एज वेल एंड इन 50,000 वाली शर्ट एज वेल. So you are saying that it is mostly about the mindset कि माइंडसेट. आई नो जैसे कि ब्रांड्स वगैरह कनाडा में बहुत होता था कि ये ब्रांड पहना है वो ब्रांड पहना है. मैंने कभी कुछ ब्रांडेड नहीं पहना था बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट वाज स्टक इन माय माइंड. ब्रांड मुझे थोड़ा बनाता है, मैं ब्रांड को बनाती हूँ. मैं वो पहनूंगी, दे आर लकी. मैं तो $10 की शर्ट में भी सुंदर लग सकती हूँ. सो हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, क्योंकि तुम अंदर से यू आर पूरा अपने आप को आपने पूरा किया है थ्रू योर वर्क, थ्रू योर एजुकेशन. आई वाज ऑलवेज वर्किंग, वर्क, एजुकेशन एंड व्हाट यू बिल्ड आउट फॉर योरसेल्फ, रीडिंग से, यू नो, कंटेंट से. सो या, it makes a difference. Do you think that when someone moves from that humble background mindset to a wealth building mindset, or let's say the rich mindset, so do you think that they have to change something in themselves or कुछ unlearn करना पड़ता है उस समय? Yes and no. So I'm a firm believer. So what you have to change in your mindset is the mindset of growth and taking failure. So we come from a very humble background, as in both my parents are working families, right? Both me and my husband's family are from working class. So from working class, getting into a business mindset and we're going to start a business, that only is a big deal. My husband was in the US with his brother, and they were earning 5-figure salaries, right? They had everything in the world, that the apartments, the lifestyle, everything. And still getting back here because we wanted to live with family, getting back to India and then starting that business. You have to think of 3 things. First, why are you doing it? Money cannot be an objective. Mindset. So, hi, मुझे पैसे कमाने cannot be. You have to have something कि I love doing this. पैसा will follow. पहले तो ये mindset change करना पड़ता है कि हाय पैसा. जब तुम पैसे के लिए काम करते हो तो पैसा नहीं आता है. जब तुम काम करने के लिए काम करते हो और उसमें बहुत एस कर लेते हो, तब पैसा आता है. तब पैसा आता ही आता है, कोई उसे रोक नहीं सकता. दूसरा, कीप गोइंग का माइंडसेट. बिकॉज 9 to 5 की जॉब में जब तुम बचपन में होते हो, यू ऑलवेज सी योर पेरेंट्स आर ऑलवेज होम. यू नो, मेरी मम्मा वाज अ लेक्चरर, वो मेरे स्कूल आने से पहले आ जाते थे. माय फादर वाज इन द बैंक, 5 बजे पापा आ जाते थे. सेकंड इज देयर इज नो वर्किंग आवर्स. यो माइंडसेट चेंज करना पड़ता है. जब हमने काम शुरू किया था, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फॉर बिजनेसेस एंड वी वर इन्वेस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम लोग सुबह जापान से लेके रात को मैक्सिको क्लोजिंग तक इन्वेस्टिंग करते थे फॉर अ क्लाइंट, राइट? वी वर मैनेजिंग देयर फंड्स एंड हम लोग ऑल नाइटर्स लगाते थे. सो फर्स्ट 1 year of माय मैरिज, हम लोग सुबह 6 o'clock या 4 o'clock सोते थे every single day because we had to work, right? तो वो माइंड सेट है, there is no hours. What your work wants, your work wants. And third, positivity. कि ये काम करेगा. ये काम करेगा because I'm putting in the work for it. Being positive, क्योंकि failures आएंगे. Failures आना is the most common things. Only 5% of the businesses that start go to the second year of business. Right? So वो ये 3 चीजें, consistency, failure आया है, उठो, next day you always have to show up the next day. My husband says that कि रमनी, we have to show up the next day, no matter what happened. पीछे गया, खत्म. Next day you have to show up. You're down, you're very down, or you're up, but you will show up the next day. Very important. ये mindset change करने से, and being positive as in every person teaches you something. हर बंदा, हमें लगता है हम सबसे smartest in the room है. It's not true. मैं कह रही, I've had so many job interviews and I love interviewing people. हर बंदा, हर इंसान तुम्हें कुछ सिखा के जाता है. वो pull out करने की capacity होना, that is, I think, the beauty, and that mindset can make you grow a lot, tremendously. Right. I think I love when you said कि वो जो mindset है ना कि हाई पैसा कमाना है, उससे ऊपर उठना पड़ता है when you have to like achieve something like that. Something. Right. Achievement is की जो feeling होती है ना, वो हाई कोई बैग, कोई पैसा कुछ नहीं लेके दे सकता.
Right. So, being a part of Finvasia Group, Shunya, you meet a lot of new investors, young investors. आपने कुछ change notice करा है over the years, how people perceive money or investing? So over जब हमने काम शुरू किया था, there was the concept of raising funds and everything was small, very little. So we are bootstrapped still. हमने आज तक कभी funds नहीं raise किए, and we have over 10 businesses now in different sectors. But अब क्या है? Business is more acceptable, right? We also invest in businesses. We have IIT यहाँ IIT Ambala में we have our own incubation center as well, where we're funding kids as well. आजकल funding बहुत readily available है. If you have an idea, उसको टेस्ट करने के लिए there are people who have the money and तुम्हारा आइडिया कभी तुम्हारे मन में नहीं रह जाएगा. ये नहीं आजकल होता कि जब मैं इतने पैसे अर्न करूंगी या इतने पैसे सेव कर लूंगी उसके बाद मुझे उसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी. अब होता है इफ आई हैव अ वेरी गुड आइडिया एंड हम उसको MVP लेवल तक लेके जा सकते हैं. There are always investors who will start putting money in your business, and if it's actually a good idea, it can go to the top. So आजकल के बच्चों का accessibility बहुत ज्यादा है, and but now they have to put that hard work and वो कि मैंने ये करना है. Right, that's so true. So, as we were talking about investing only, सबसे I think जो important सवाल आजकल सबके मन में आता है कि invest सब बोलते रहते हैं पर invest कहाँ करें? I mean, so do you have any particular options in mind जहाँ पे 2026 में invest करना या कर सकते हैं? So invest कहाँ करे पे मैं बाद में आती हूँ. इन्वेस्ट कहाँ नहीं करे पे मैं पहले जाती हूँ. Right. कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट मत कीजिए. प्लीज टू एवरीबडी आउट देयर. मेरे चाचा जी ने वहां पे लगाए, चलो हम भी यहाँ पे अपने पैसे लगा देते हैं. मेरे जिम वाले इंस्ट्रक्टर ने ये वाला स्टॉक खरीदा, चलो हम भी ये खरीद लेते हैं. ठीक है. प्लीज इन्वेस्टिंग बाद में, पहले जहां अपने पैसे नहीं लगाने, किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे प्लीज अपने पैसे हार्ड अर्न्ड मनी लगाना बंद कीजिए. Because what happens is हम लोग इतना टाइम लगाते हैं, इतना अपना कट कॉर्नर्स करते हैं टू सेव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, राइट. लेट्स से हमने लाख रुपया सेव किया, हम इतना टाइम लगाते हैं टू सेव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, और फिर किसी ने भी रैंडम बंदे ने बोला ओ यहाँ लगा दो, यहाँ पे पैसा बहुत आगे जाएगा, एंड हम लगा देते हैं. सो आजकल बेनिफिट ये है, आई थिंक यू शुड बी अ स्मार्ट एजुकेटेड इन्वेस्टर. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. There are courses now. मतलब literally there are small little courses that can make you an educated investor, right? Like for example, we have a company called Shunya. Shunya has a weekend course for investors where who want to invest in the stock market every weekend. क्योंकि 3 घंटे में तुम्हें कोई stock market नहीं सिखा सकता. It's a 4-week course. तुम हर हफ्ते आओ, कुछ सीखो, apply it, and then make your own decisions. Because there are so many tools available now. Like let's say there are so many AI tools available, right? So now you're educated about the market, right? And you're educated about the market. Now you make little decisions, and 2 things you never let yourself give in to. One is greed and one is fear. Investors को सबसे पहले greed की हाय मेरे थोड़े से और पैसे बन जाएंगे फिर मैं निकाल लूंगा. Second is fear कि हाय मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, हाय मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे. अगर आप उस माइंडसेट से करोगे वो पैसे खत्म होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट एकदम जब क्रैश की वॉर की वजह से, पीपल पुल्ड आउट. एंड वी से कोविड के टाइम पे एक दिन में 10,000 करोड़ वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट, राइट. उस टाइम पे पैनिक सेलिंग ना करके जिन्होंने रखे थे अपने, इवेंचुअली द मार्केट गॉट अप. सो फियर वाला पार्ट है, राइट. सो यू वो धैर्य से यू हैव टू कीप योर मनी देयर एंड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म में हर मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है. चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आप निफ्टी ले लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गई है. एंड थर्ड पार्ट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. आई एम श्योर एवरीबडी हैज हर्ड इट, बट अब क्या डाइवर्सिफिकेशन बहुत इजी हो गई है. छोटा छोटा भी इन्वेस्ट करके हम लोग कर सकते हैं. तुमने एक डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया, 50 रुपए का, 100 रुपए का गोल्ड ले लिया, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जितनी पॉकेट है. आपने म्यूचुअल फंड में लिया,
आप बॉन्ड्स ले लो, ठीक है, ठीक है, आप NFTs ले लो. सो यू हैव सच अ बिग मार्केट, बिग होराइजन टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. क्योंकि अगर एक साइड नीचे जाएगी तो दूसरी साइड ऊपर जाएगी. स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो दैट विल ऑलवेज बैलेंस योर पोर्टफोलियो, एंड फिर आपका वो जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा. And be confident. क्योंकि every time if you see historically, the markets have always come back and plus more. कई बार ना ऐसा लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सारा पैसा जरूरी है. आई मीन इकट्ठा पैसा होना चाहिए, जब भी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे. सो डू यू थिंक दैट विद कमिंग ऑफ SIPs और जो गोल्ड में इन्वेस्ट या ETFs में इन्वेस्ट छोटे छोटे अमाउंट कर सकते हैं, तो उससे ये माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए आज के टाइम पे? मेरे ना ऐसे लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट टाइम ब्लिंकिट और स्विगी जब खोलो ना, वो बंद कर देना, और जितने वो पैसे आप खर्चने वाले थे ना उस खाने के ऑर्डर पे, उसको इन्वेस्ट कर दो. दैट्स हाउ सिंपल इन्वेस्टिंग हैज बिकम. That's how easy and minimal amount so you have to start. Next time whenever, हम सबके पास Zomato है, हम सबके पास स्विगी है, हम सबके पास ब्लिंकिट है. वो जो हम एंड प्लस वी आर बिकमिंग हैबिचुअल स्पेंडर्स. नहीं है चलो ऑर्डर कर दिया, 200-250 रुपए का तो खाने का ऑर्डर आता ही है ना, उतने से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते. उससे भी आप 10 years 20 और उस पैसे को भूल जाओ, 20 years down the road you will have created a wealth for yourself. That's it. Right. So as we were talking about investing, so आपने बताया कि कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है. So but do you have any favorites in mind कि 2026 में these are the places that people can invest in? Yeah, let's say if I wanted to start investing and if I had let's say 5,000 rupees every month I want to take out, or let's say 2, मतलब उसको जैसे मर्जी प्लस एंड माइनस कर लेंगे, I would invest in Nifty. That's how I would diversify my portfolio. I would probably be not investing in stocks अगर मैं educated नहीं हूँ stock market में. I would probably invest in the entire Nifty market. I would probably just a percentage, probably 1,000 rupees a month. Then I would secondly I would buy mutual funds. 500 या 2,000 की I would just start an SIP and blindly start investing in that. Thirdly, I would invest in gold. छोटा छोटा करके. एंड फोर्थली इफ वो जो पार्ट में जिसमें मैं रिस्क लेना चाहती हूँ या वो आई वुड इन्वेस्ट इन सिल्वर. आई एम एक्चुअली वेरी बुलिश ऑन सिल्वर एज वेल. सो मतलब क्योंकि इफ यू आर बाइंग इट अगेन, जिसने लाख रुपए पे खरीदा था, बात वहीं पे आती है. एंड ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कभी भी ये मत करना कि मेरे पास 50,000 रुपए आज मैंने सारे इन्वेस्ट कर दिए. हर रोज जब आप एवरी सिंगल मंथ कंसिस्टेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो वो जब डाउनफॉल आता भी है तो आपकी पोर्टफोलियो पे वो नहीं आता, क्योंकि आपने तो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया था. लेट्स से फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने जनवरी में, क्योंकि टैक्स सेविंग होती है, जनवरी में इन्वेस्ट किया था 50,000 1 लाख जो भी टैक्स सेविंग होती है, वो लोग करते हैं. उन्होंने जब बल्क अमाउंट म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी XYZ जगह पे लगा दिया, जैसे ही वॉर आई उनका पोर्टफोलियो कहाँ गया, वो 50,000 कहाँ गए, यहाँ पे. राइट. फिर उन्होंने पैनिक सेलिंग मोस्ट ने की, तभी इतना पैसा उड़ा मार्केट से. उन्होंने सोचा हाई मेरे तो पैसे निकल गए, एंड देन यू टेक इट आउट. सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड कंसिस्टेंटली, वो इक्वलाइज हो जाता है. तो वो आपको वो उतना स्टीप लॉस नहीं आता, बिकॉज आपने इतने पे भी खरीदा, आपने इतने पे भी खरीदा, आपने इतने पे भी खरीदा. सो वो बैलेंस आउट हो जाता है. इज व्हाट माय सजेशन वुड बी. बिलीव एंड स्टडी अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग योर मनी. No, that's so true. That और एंड जो आपने एक बात बोली थी अबाउट कि एजुकेटेड इन्वेस्टर होना बहुत जरूरी है, कि बहुत किसी की भी बातों में आकर के आज ये इन्वेस्ट कर दो, वहां कर दो, उससे तो बिल्कुल ही परे रहना चाहिए as an educated investor. And as you also mentioned about the courses, कि आजकल तो like शून्य के भी courses हैं, and market में इतने अच्छे अच्छे courses भी हैं. तो अब पढ़ो ना, मतलब आई मीन आई थिंक यही एक वो गैप भी क्रिएट करता है, राइट. लाइक जैसे हम पहले हम ऐसी बातें करते थे कि विमेन
को इतनी नॉलेज नहीं होती है इन्वेस्टिंग की या फाइनेंशियल चीजों की, बट आई बिलीव वो गैप भी कहीं ना कहीं फिल हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सबको ये एम्पावरमेंट भी मिल रही है कि नहीं, तुम लोग, हम सबको भी पढ़ने की जरूरत है, वो गैप Exactly. फिल करने की जरूरत है, राइट? अब अगर कोई मुझसे भी इन जनरल पूछता है तो आई बिलीव कि नहीं, वो गैप फिल होने लगा है कहीं ना कहीं, Of course. एटलीस्ट फॉर आई सी विमेन getting into studying Yeah, all these things, right? definitely. जब like my नानी के टाइम पे, my नानी used to be very typical, घर में रहते थे और सेव तब भी करते थे अपने छोटे से रेड पाउच में, right? But whenever if my नानू wanted money, she always had money in for the rainy days, right? Then my mother was educated. My mother was a physics professor, right? उन्होंने हमेशा, now my father and mother were equal and they believed कि हम दोनों equal हैं and they jointly could make properties in Chandigarh, right? Because they grew. सिर्फ वो FD ने उन्हें grow नहीं किया, right? And they made those decisions इकट्ठे. अब जबरदस्ती नहीं है, Right. अब हमारे पास तब पहले क्या होता था, सिर्फ FD होती थी और प्रॉपर्टी होती थी और मैक्सिमम कई लोग गोल्ड लेते थे, सारे भी नहीं लेते थे. गोल्ड वाज लाइक अ लग्जरी थिंग. नाउ डिजी गोल्ड एंड एवरीथिंग हैज मेड गोल्ड लाइक अ नेक्स्ट थिंग की यार ठीक है 20 रुपए का ले लेते हैं, 100 रुपए का ले लेते हैं, समझ रहे हो? कॉफी 350 360 की आई, चल 40 रुपए का गोल्ड ले लेती हूँ. इट्स जस्ट अ लिटिल माइंडसेट की ट्वीकिंग करते रहे, सो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल rather than. And what you were saying about courses, अपना कोर्स करो, प्लस आजकल AI आ गया. If you're not, what I said initially, put some part of your money to your investing. Is not just पैसे invest करना. Investing is also investing in your personal growth. Your skills nobody can take away from you. And इस टाइम पे major skill set is happening. जैसे इंटरनेट बूम आया था, टेलीफोन ये सेल फोन बूम आया था, अब ये बूम आ रहा है, AI बूम आ रहा है. AI is making everything so easy, and people who are investing in those courses, like 200-250 रुपए का कोर्स होता है. It's not even you have to do the full course, because but every course they're teaching you something. The other day I could make an entire video, ad film by myself. कल I coded an entire landing page by myself, a working landing page by myself. Because I'm investing that. अब मैं 2 घंटे जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, 2 घंटे कब जाते हैं पता नहीं चलता. वो 2 घंटे उस कोर्स में लगाना बहुत ऑकवर्ड होता है. वीकेंड को बड़ा बोरिंग लगता है कि कौन बैठेगा. पर जब उससे कुछ क्रिएट करते हो ना, वो जो एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है, यू हैव इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ, दैट एम्पावरमेंट की फीलिंग तुम्हें अंदर से भरती है. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस, वो जब तुम्हें अंदर से भरती है और वो कॉन्फिडेंस वही तुम्हारे फेस पे आता है, एंड वही तुमको अट्रैक्टिव बनाता है टुवर्ड्स एवरीबॉडी अराउंड यू. Right. So, I also want to understand. I mean, I think जो भी लोग हमें देखेंगे उनको भी ये क्वेश्चन होगा कि AI को कैसे रिलेट करें इन्वेस्टिंग से. How should we take help of AI when it comes to investing? So, can you clear that out Sure. as well? Again, I'll go back to जब हम लोग अपने रिश्तेदारों से या जिम इंस्ट्रक्टर या किसी फ्रेंड से पूछ के करते हैं, जब हम उसको ट्रस्ट करते हैं, AI can help you in a lot of ways. Like for example, we have come up with a product called Jump. Hey, there is this AI agent that we have made that is called Jay. You can literally talk to Jay. First thing is, we don't know हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं. कभी महीने के अंदर होता है ना, पता नहीं मेरे पैसे कहाँ चले गए, राइट? कहाँ चले गए जब नहीं पता चलता ना, that is the first problem that AI can solve for you. अब जब हम बैठेंगे, अब मंडे टू फ्राइडे काम कर लिया, कौन सैटरडे संडे को बैठ के एक एक करेगा? हम तो कूल बहुत है, हम इतनी चिंदी चोरी थोड़ा कर सकते हैं. सो हम लोग जय से पूछेंगे कि जय कहाँ इन्वेस्ट करें यार, वो सॉरी कहाँ हमने एक्सपेंसेस कहाँ गए. वो लिटरली सेकंड्स में आपके जितने बैंक अकाउंट्स है उसको कोलैबोरेट करके आपको बता सकता है, इतने खर्चे आपने फूड पे किए, इतने फ्रेंड्स पे किए, इतने आपके बच्चों पे हुए थे, इतने आपकी सैलरी पे हुए थे, ये आपकी इनकम है. विद इन सेकंड्स you have that in front of you. That is when you realize. I never knew I had so many subscriptions. Netflix, Amazon के अंदर Lionsgate की subscription. When you realize छोटा छोटा करके वो 99 rupees करके how much extra money that you are spending on stuff, right? Blinkit के orders मैंने कितने किए, वो सारा जब तुम्हारे सामने आता है, that's the first step, the realization कि मैं पैसे कहाँ spend कर रही हूँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, right? That's so true. है ना, वो होता है ना, इट इज लाइक पैसे कहाँ गए. और देन जब तुम एक्चुअली वो डाउनलोड करते हो, देखते अच्छा यार मैंने ऐसा किया. देन द सेकंड पार्ट इज यू कैन टेल हिम, यू कैन ट्रेन दोज एजेंट्स
कि प्लीज मेरे को फूड पे मेरा इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, या दिन का प्लीज मेरा ये मीटर लगा ले कि इससे ज्यादा मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट स्पेंडिंग, इट स्टार्ट सेंडिंग यू नजेस. मम्मी की टोका टोकाई बुरी लगती है, वो जब आके एक मैसेज करेगा वो बुरा नहीं लगता फिर. सो जब वो एक अब तुमको भेजेगा मैसेज कि, एंड देन तुम्हारे ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, क्योंकि नाउ यू चेकिंग इट एवरी डे एवरी वीकेंड, इट बिकम्स अ हैबिट. नाउ ये चेकिंग अपने आप करोगे, यार ठीक है आज मैं सबवे नहीं खाता, या आज मैं ये ऑर्डर नहीं देता, इसकी जगह मैं ये रख लेता हूँ. अब तुमने उसे गोल दिया कि चल ऐसे मेरी एक्सपेंस ट्रैक करके मुझे 5,000 रुपए बचवा दे इस महीने. अब उसने आपने कर करके 5 का नहीं 3 बचा लिए होंगे, बट यूल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू नो, आई वॉज एबल टू डू दैट. ओ माई गॉड, आगे पीछे मैं 25th ऑफ एवरी मंथ पे ब्रोक होता था या होती थी, आज मेरे पास 3,000 रुपए. यू नो, अब मैं इन 3,000 का क्या करूं? नाउ दिस पर्सन कैन टेल यू, बिकॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन टेलिंग यू. अगर मैं इंश्योरेंस बेच रही हूँ तो आज मैं बोलूंगी यार इंश्योरेंस में डालते बड़े पैसे हैं, एक तो सेफ्टी की सेफ्टी हो जाएगी, बाद में देखो पैसे भी आ जाएंगे. इफ आजकल मैं म्यूचुअल फंड बेच रही हूँ, मैं बोलूंगी नहीं यार मैंने तो म्यूचुअल फंड से पैसे बचाए थे, राइट. अगर आज मैं गोल्ड दे रही हूँ, पर जय कैन एक्चुअली टेल यू ये 3,000 को भी तो डाइवर्सिफाई कर. इट विल नॉट केयर कि मेरे को म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं बनता तो मैं म्यूचुअल फंड नहीं एडवाइस करूंगा. इट विल ऑलवेज टेल यू टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. And now you're educated, plus with the help of what Jay is telling you, you can combine those two things and put your money in there. वो risk factor कम हो जाता है. Diversification का risk factor, education से risk factor, and AI की help से वो risk factor कम हो जाता है. Right. That's so great. I mean, ये सुनने से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि okay, even if I start using it, तो मुझे भी छोटे-छोटे realizations होने लगेंगे, especially when you mention subscriptions. I mean, वो पता ही नहीं लगता है कि अच्छा Netflix Prime ये वो सब ले रखा है, but with the help of this tool, I might just sort these things out कि you will मतलब be amazed. और ये तो मैं I'm talking at the top of my head. You will be amazed. छोटे-छोटे इतने खर्चे बचते हैं ना, and वो month end में जितना difference create करते हैं ना, one month of meticulous spending. I'm not saying कि अपना वो कर दो कि you know मैंने enjoy नहीं करना, enjoy करो, but because you have kept a budget now for it and it can guide you कि बस अब इतनी इससे ज्यादा मजे नहीं करेंगे हम लोग, इसके बाद हम अपनी फ्यूचर के लिए wealth भी create करेंगे. And it is such a good partner for you that you don't feel that somebody is nagging you. तुम्हें खुद empowerment आती है कि मैं खुद अपने लिए देखो क्या कर रहा हूँ. And that is the beauty of it. Right. I think इससे मुझे एक और चीज याद है कि recently only I was watching this video जिसमें there was this expert who was speaking about money only, right? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि महीने में तुम्हारे खर्चे कितने हैं. If you don't know कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तो वहां से तो तुम वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि मतलब क्लैरिटी ही नहीं है कि कितना तुम स्पेंड कर रहे हो, कहाँ तुम्हारे कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो कहाँ से तुम्हारा वो. एंड देन वाज लाइक कि 12 months में कंपाउंड करके तुम्हारा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए तुम्हारे पास, राइट? तो आई वाज लाइक कि हाँ यार मतलब सही बात है, बट देन अगेन टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ कितना हम, इट्स नॉट लाइक जैसे 20,000 बोल दिया मैंने कि मेरा खर्चा है, तो इट कैन बी लाइक 20-25,000, बट अगेन आई कांट गिव यू एन आंसर कि 20 से 30,000 है मेरा खर्चा. दैट इज टू वेग. Exactly. Right? Exactly. 10,000 का. Now this person, like because of AI, you can analyze 6 months के खर्चे. You can exactly know कि 6 months में मैंने किया क्या है. 6 months, 1 year, whatever you tell it, right? कि अब then you can tell him कि you have analyzed it. When you see that ना, that check, that constantly somebody telling in your mind, and अब कोई नहीं बता रहा क्योंकि खुद अपने आप को बता रहे, पता सबको होता है, समझ रहे हो? अच्छे काम करने हैं, मनी सेव करनी है, सबको पता है, बट जब करने की बारी आती है देन वी लाइक चल कल से करेंगे, चल आज मैं ये कर लेता हूँ, चल कल से कर. वो वाला फैक्टर ना दिस AI कैन हेल्प यू विद. कल कभी आता नहीं है, वो जीरो. और सबसे बड़ा डिफिकल्ट स्टेप होता है वो 0 डे से फर्स्ट डे पे जाना. फर्स्ट डे, वो फर्स्ट मंथ इज द हार्डेस्ट, पर एक बार वो आदत पड़ जाती है ना, देन इट इज अ नशा. राइट. देन इट इज लाइक मैंने ये करना है. Right. So, do you think that जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, they are open to using AI when it comes to investing? Semi will be, mostly will not be, to be honest. Right? They have a fascination because they still are in that phase that they need a physical person to
tell them this. But what we can help our parents with is that is us teaching our parents. I was teaching my mama how to play, use the computer these days, right? Now because she's getting older, so I was teaching her how to. The older age में dementia and these things come over, so you have to do these brain exercises as well. So मैं उनको computer सिखा के I was teaching her, brain puzzle exercises, so it keeps your brain active. So now if I show her Jay, now you can talk to. पहले तो होता था कि लिखना पड़ता था वो, but now हमने ChatGPT चलाना सिखाया. So अब मैं उनको voice to voice करना मुश्किल नहीं लगता because it's in your language. So I think they again what I said earlier कि पहला step लेना है, पहले step के बाद अपने आप वो automate हो जाएंगे. It will take them 2 years, but they will be. मेरे मानना है कि 2 साल के बाद वो भी automate हो सकते हैं. But ये नहीं, day one पे I am sure they will not be कि हाँ यार चलो मैं अपना phone पे कर लूँगा. But our generation is more perceptive and accepted to the fact कि यार online होता है. This is the safety procedures because we trust all of that. Right. So I think let's say अगर शून्य कोई product launch कर रहा है तो we can trust that thing, okay? But again हर किसी product पे या हर किसी let's say ChatGPT पे तो हम trust नहीं कर सकते हैं, right? When it comes to नहीं, AI. because like we have been in the market and we are in the registered space for last 20 years, right? We are in the market for almost US say we have been 20 years, India may we have been more than 17-18 years now. When we launched Jump, the idea was not कि पैसे again पैसा was not the idea. Idea was कि tier 2, tier 3 का हर वो इंसान जो कैश में करता है, right? उसको अपने expenses कैसे manage करके कि वो भी कुछ कमाए ताकि वो भी wealth create कर सके. Again a little example. I was talking to so we have a driver बहादुर भैया. बहादुर भैया ने over a period of time he has been with us for around 18 years now. He has a house because he has saved. Right? And he always used to save money. Again, FD say he always used to do gold investments. उन्होंने सिर्फ gold investments किए. He did not do any mutual funds वगैरह. When we were discussing this Jump idea, I was talking to a painter. Painter earns 30,000 rupees a month. अब ऐसा भी नहीं उनके कोई Blinkit वाले खर्चे नहीं है, right? तो क्या है आप क्या करते हो पैसे के साथ? मैंने गांव भेजना है, अपनी बहन की शादी करनी है. सो वो पैसे वो भेजता है हर महीने, वो 10,000 रुपए गांव भेजता है अपनी मम्मा के पास. वो अब उस पैसे का क्या होता है? वो पैसा जाके उनके किसी कॉर्नर में पड़ा होता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो इतने उस पिछड़े हुए इलाके से वो बैंक तक भी शायद नहीं पहुंचता वो पैसा. अब वो जमा कर रहे हैं बट ही डज नॉट नो एनी बेटर कि ये पैसे बढ़ भी सकते हैं. उस सेक्शन ऑफ द ऑडियंस तक वो पहचानना कि पैसा घर से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में सेफ है. अगेन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में सेफ है, नॉट एनीबॉडी, राइट, में सेफ है. एंड वो पैसा अपने आपके लिए ग्रोथ लेके आ सकता है. वो पैसे को अगर हम काम पे लगाएं वो हमारे लिए और पैसा जनरेट कर सकता है. वहां तक दैट इज अ ड्रीम, दैट इज अ आइडियल ड्रीम. So the product is out in the market for everybody to use. Yes, the product is out. The features of having all account aggregator, then saving your money and seeing where your expenses are. Digital, everything is free and it's out on the Jump app as we speak. So you can analyze everything. And generally these apps like जो digital होती हैं, they charge you money. We are not charging anything. We believe in volumes. We believe we have to give back to the society. So this part of the thing is absolutely free. So people can, go on it, analyze their expenses and see कि where उनकी financial कुंडली क्या है, जो आजकल के ज़माने में बहुत important है. No, I think that's a lovely idea, and keeping it free is also great क्योंकि ताकि accessibility सबके लिए हो. It's not just that कोई एक certain group of people ही access कर पा रहे हैं product when it is made for everyone. Everyone. So वो ही true wealth will be generated when accessibility will be provided to everybody. Yes. Right. So, okay. So if I ask you about certain mistakes or certain common mistakes that people usually make with money, then what would those be? Common mistakes that people, again, what I said. So I will, again, example time. So when I was younger,
I have this urge, what normal people, everybody has, I have this urge to buy everything. अगर वो ad market में आई है, मुझे लगता है बस मेरे लिए ही बनी है and मुझे वो चाहिए चीज. So my brother would always say, Ramnik, you're a special member of TakeMyMoneyAway.com. Right? So he's like, ये तेरे लिए बना है, कुछ भी करो इसको बेच सकते हो. So firstly, our first mistake is that impulse buying. Impulse buying. और अब accessible तो टीवी पे हम ऐड देखते थे. अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, एवरी 2 रील्स के बाद थर्ड थिंग इज एन एड. दे सेलिंग समथिंग. फर्स्ट, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट. क्या ये मेरी जरूरत है या ये सिर्फ मेरी चाहत है, इज फर्स्ट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स वी डू, मिस्टेक्स दैट वी मेक इज कि हम अपनी नीड को अपनी वांट के साथ मिक्स करते हैं. हम अपनी हर वांट को सोचते हैं कि वो मेरी नीड है, एंड इसलिए हमारे पास पैसा नहीं बचता. राइट? ये तो हमें चाहिए चाहिए. पर जब भी अगली बार ये ख्याल आए, जस्ट अ सजेशन, क्लोज योर इंस्टाग्राम फॉर लाइक 5 minutes, एंड अगर सेकेंड या थर्ड डे तक भी आपको लगेगा कि आपको इसकी नीड है, बिकॉज दे विल आल्सो कीप शोइंग यू दैट, राइट, नीड है अदर देन वांट, पर दूसरे तीसरे दिन तक यू वीन ऑफ दैट नीड. दैट वुड हेल्प यू. Right? So first mistake is very common mistake is that impulse buying, right? The second is not investing, right? अगर हम third is कि what we commonly do is हम लोग सुनी सुनाई बातों पे, again what I will say, third is सुनी सुनाई बातें, drop that. And fourth is not being educated about your investments. You are educated, but if you are financially not literate, right, and you are not putting your hard-earned money to use the way you want it, that is the most common mistake that I would like people to avoid. Right. So before I move on to the rapid fire or the quick questions, I want you to tell whoever who is watching us, listening us, ki how can they actually adopt this wealthy or the rich mindset in their life? Maybe certain steps you have in mind, or how can they do that? My thing would be, life is a full circle, right? Again, what I said earlier, पहले तो पैसा पैसा करना छोड़ दो, right? First, be at peace in your heart, in your mind. When your mind and your heart is स्थिर, वो एक जगह पे होता है, then you bring that positivity and it gives to your family. ठीक है? When your entire family are happy, then you don't need to look back to buying as a source of dopamine for yourself. Right? तो खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं, because तुम्हें खुशी और तुम्हारा डोपामिन यहाँ मिल रहा है. Right? फिर उसके बाद जब तुम इस कूल माइंडसेट के साथ, with a happy family, when you go to work, you're putting in that extra effort, that extra 1% या 0.5% every day at your work, which compoundedly will give you so much more over the year, that you will get noticed by your boss, you will be amazing at your work, because you're loving to do your work, then the money will follow. The raise will not be as जो सबको मिलता है, raise ज़्यादा होगा, अब ज़्यादा पैसे आए. अब because हम लोग educated investor हैं, हमने अपने आप के अंदर भी investment किया throughout the year, we started and we learned, free resources बहुत है market में, learned about investing. Now हम अपने educated decisions लेके वो मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वी विल स्पेंड सम अगेन विद आवर फैमिली एंड ऑन आवर ग्रोथ, राइट? इन्वेस्ट सम ऑन आवरसेल्व्स, सम in the market to create wealth, and on a family that will create more happy memories for us. So life full circle will be rich for you, and that's how you'll be truly rich inside out. Amazing. एक चीज ना, I mean just came to my mind कि ये सवाल भी होता है कि क्या हम अपनी सैलरी से कभी रिच नहीं हो सकते? Do we always have to get into business to get rich? Again, I met a guy, and true example, right? I met a guy, ICICI में काम करते हैं, मैं नाम नहीं of course लूंगी. So we had to start this different line of business, and उनके regarding I met them. That guy has a portfolio. Again, he was 55, right? Almost 55, 54. His son was around 18, 19 years old. He had a portfolio of 25 CR in mutual funds. So salary and
it's just about starting. It's just about taking that first step. And the earlier you take that first step, is the more wealth you will generate. A 20-year-old example, a 20-year-old boy, if he starts putting 1,000 rupees in mutual funds, let's say, every single month, by the time he'll be 60, he will be having compoundedly, he would have put in like 4.5-5 lakh rupees, but he would have retired with 1 CR rupees. अगर यही वो इन्फ्लेशन के साथ वो पैसा बढ़ाते रहेंगे, so obviously he'll retire with more. And यही अगर किसी ने 40 की एज में 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना शुरू किए, which is 5 times more what the boy had invested, he would still end up, he is invested more money, but he would have still end up when he's 60 with only 50 lakh rupees. This is the power of starting, taking that first step. So please, my request to everybody, take the first step. Amazing. And of course, in between, don't go for panic selling. Panic selling, definitely not panic selling. So जो किया है, have faith. Again, education will give you that faith. Have faith and stay in the market. छोटा छोटा करके करते रहो. Again, because we have diversified, we are doing छोटा छोटा, so compounding will always make things better for you. Over time. Absolutely. Yes. Absolutely. So I'll just quickly ask you some rapid fire questions. So here we can't take stories and examples. We'll have No to be. examples anymore. It's okay. One money habit that changed your life. Investing. Rich mindset or high income, which matters more? Rich mindset. One financial mistake people should avoid at all costs. Investing on लोगों की सलाह. Right. Investing early or investing big? What Investing matters early. more? Investing early. Early. Any day investing I early. think we just discussed it. Yes. One belief about money you strongly disagree with. Which I strongly disagree with. Right. That you need to have a lot of money to be rich. It's just about, money is all about compounding, and it is not about अभी मेरे पास कितना पैसा है. It's Right. about hare and rabbit वाली story जो होती है, rabbit and tortoise वाली story, छोटा छोटा करके long term के लिए खेलो. Right. Your go-to advice for someone in their 20s feeling financially lost. Educate yourself. Educate, then monitor your expenses, save, invest first, and then spend. Whatever is left, splurge. Great. What does financial freedom feel like in one line? My mother says, financial freedom is तब जब कभी भी कोई काम रुकना नहीं चाहिए. कभी भी कोई काम रुकना नहीं चाहिए, and that means you're financially free. पैसे की वैसे होता है ना कि मेरा काम नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए. That means you're financially free. उसके बाद सिर्फ दौड़ है, जहां तक लगानी है लगाओ, no problem. With a स्थिर mindset, जहां तक वो दौड़ लगानी है लगा लो. Amazing. So beautiful, Ramneek. I mean, I enjoyed this conversation so much. मुझे बीच में जो आपने सारे, I think the whole purpose of this podcast is कहानियाँ, and जितनी सारी हमने कहानियाँ, stories discuss करी, I really enjoyed listening to all of them. And again, I learned so much from you today, so much which I'm going to take with me, of I course. hope so. And Jump, definitely I'm going to download. Thank you so much, Anjali. Amazing host you are, and I hope this helps everyone, and it was amazing talking to you on camera Same and here. outside. Yes. Same here. Thank you so much. Thank you. Take care, darling. Take care. Bye bye.